So friends, now we will get ahead in our chapter. We have discussed fundamental units, supplementary units, and now the next part it is that we have discussed earlier, that is practical norms for the use of SI system. Okay, so here we are some rules, we are given some rules, something 5 rules, that how to write SI unit particularly. So this portion that we have discussed in the previous video. So now our obvious and next topic is measurement of length. Since our chapter is about the measurement and units, we should first start with the measurement of length. So in the universe, in the science and in the physics, there are several scales of measurement. Okay, our measurement starts from small scale, very small scale, to very big scale. Okay, like the size of atom or proton or particle molecules. Okay, right from there that we can measure size of galaxies. Okay, size of planets and star and their distance. So to measure that, we should have several different techniques, like we are given here. For example, a meter scale is used for measuring length from 10 raised to minus 3 meter to 10 raised to 2 meter. Okay, meter scale, you know the meter scale. Meter scale. So this meter scale that we generally use. Okay, this scale gives us measurement from 10 raised to minus 2 to 10 raised to minus 3. So this is a scale that we can use in general purpose, but you know the meter scale. But for here, the vernier calipers is used for measuring length to accuracy of 10 raised to minus 4 meter. Okay, now it is very small length and the vernier calipers is used. We will show you in a laboratory what is the vernier calipers. I would like to show you image here. Vernier calipers. So this is the vernier calipers. So this device is used to measure very small measurement that we can measure using scale. स्केल से कुछ लेंथ हम मेज़र नहीं कर सकते, तब ये वर्नियर कैलिपर से हम मेजर कर सकते हैं. ओके, तो ये जो डिवाइस है उससे भी और दूसरी 2 डिवाइस आती है जिससे हम स्मॉल एंगल्स मेजर कर सकते हैं. तो फ्रेंड्स अभी ये देख लीजिएगा, इसे कहते हैं वर्नियर कैलिपर्स. देन स्क्रू गेज, ये वाला स्क्रू गेज एंड स्फेरोमीटर, ये दोनों मैं आपको बताता हूँ. स्क्रू गेज, स्क्रू गेज. ओके, ये है स्क्रू गेज. इसको यूज़ करके हम उससे भी स्मॉल जो मेजरमेंट होते हैं वो ले सकते हैं. ओके, तो इसका भी यूज़ कैसे करना है वो हम लैब में देखेंगे. सिमिलरली स्फेरोमीटर, स्फेरोमीटर स्फेरोमीटर. तो ये जो डिवाइस है इसे कहते हैं स्फेरोमीटर. तो इसका यूज़ करके हम स्मॉल मेजरमेंट्स ले सकते हैं, लाइक कर्व सरफेस, समथिंग लाइक दिस. और जो हमारा कॉनकेव, कॉन्वेक्स, मिरर और लेंस होता है उसका कर्वेचर भी हम इससे लेकर मेजर कर सकते हैं. तो ये जो स्मॉल मेजरमेंट्स होते हैं उसके लिए ये जो इक्विपमेंट है, वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज और स्फेरोमीटर, वो हमें 10⁻⁵ मीटर, 10⁻⁵ मीटर, यू नो हाउ स्मॉल मेजरमेंट इज 0.00001. ओके, तो 1 2 3 4 5 इतना स्मॉल एंगल, मीटर का इतना जो पार्ट है 1/10⁻⁵
10⁵ वाला पार्ट जो है, इतना स्मॉल पार्ट हम मेजर कर सकते हैं। ओके, so this devices will be used in laboratory in order to measure measurement of length. Okay, but here is our topic: measurement of large distances using parallax method. तो अभी हम यहाँ पर जो देखने वाले हैं वो है पैरेलैक्स मेथड, और वो मेथड का यूज़ करके हम लार्ज डिस्टेंसेस जो है वो फाइंड करेंगे। लार्ज डिस्टेंसेस क्या मतलब कि डिस्टेंस बिटवीन प्लेनेट, एनी प्लेनेट फ्रॉम अर्थ, स्टार फ्रॉम अर्थ, और सन फ्रॉम अर्थ, और किसी का डायमीटर अगर हमें मेज़र करना है, तो ये जो पैरेलैक्स मेथड है वो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हमें दिया गया है अर्थ, और यहाँ पर फार अवे कोई प्लेनेट है, हमें ये डिस्टेंस मेजर करना है। ऑब्वियसली ये जो डिस्टेंस होगा वो तो मिलियंस ऑफ किलोमीटर में होगा। ओके, तो इसके लिए कोई स्केल नहीं होता, पर इसके लिए हमें कोई मेथड जो है वो बनानी पड़ेगी। वो मेथड को लेकर हम ये जो डिस्टेंस है डी फॉर एग्जांपल इन अवर केस, वो मेजर कर सकते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स अभी जो हम देखने वाले हैं उसमें अर्थ से लेकर कोई प्लेनेट है उसके बीच की दूरी, मतलब कि जो डिस्टेंस है वो हमें मेजर करना है। ओके, अब वो कैसे करेंगे तो यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ द पैरेलैक्स मेथड। तो पैरेलैक्स जो है उसमें यहाँ पर जो हम बात करने वाले हैं वो समझिए कि यहाँ पर हमारा अर्थ है। ओके, एंड फार अवे कोई प्लेनेट है। आप नेकेड आइज से देखेंगे तो प्लेनेट वो वेरी स्मॉल साइज का होगा। तो हमें यहाँ से जो अर्थ की दूरी है वो मेजर करनी है। सो इट इज़ द अर्थ, ओके, एंड दिस इज द प्लेनेट। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी नीड ऑब्जर्वेटरी दैट इज प्लेस्ड हियर। यहाँ पर कोई ऑब्जर्वेटरी होगी अर्थ के ऊपर कोई एक सिचुएशन पर। ये जो ऑब्जर्वेटरी है वहाँ से हम ये जो प्लेनेट है वो ऑब्जर्व करेंगे। ओके, तो समझ लीजिएगा कि ये जो डिस्टेंस है वो कुछ इस तरह से है। ये डिस्टेंस जो है समझिए कि कुछ इस तरह से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, और ये जो ऑब्जर्वेटरी है वो है ए। सिमिलरली उसके डायमीटर पर एग्जैक्टली ऑपोजिट दूसरी ऑब्जर्वेटरी हो, और वहाँ से हम प्लेनेट को ऑब्जर्व करेंगे। यहाँ पर हम प्लेनेट को ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर कोई एक एंगल बनेगा दैट इज कॉल्ड थीटा फॉर एग्जाम्पल। ओके, अब ये जो अर्थ है उसका डायमीटर मतलब ए टू बी की लेंथ, ये समझो कि बी स्मॉल बी, ये जो डायमीटर है हमारे अर्थ का वो हमें मालूम है। यहाँ पर दो पोजीशन है जो एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑन द अर्थ फेस। तो वो जो ऑब्जर्वेटरीज है वहाँ से हम ऑब्जर्व करते हैं, एंगल मिलता है थीटा, एंड वी आर गोइंग टू फाइंड डिस्टेंस डी। ओके, तो अभी मैंने आपको रेडियन में बताया था। रेडियन में पता था हमारा इक्वेशन क्या था, थीटा रेडियन में अगर हम देखते हैं तो थीटा इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस। ये वाला हमारा इक्वेशन था, पता है आपको, रेडियन में। तो जब हम रेडियन में यूज़ करते हैं तो यहाँ पर लिखते हैं आर्क। वो इक्वेशन यहाँ पर हम यूज़ करने जाए तो थीटा इज इक्वल टू यहाँ पर हमारा एंगल है, और ये जो सामने वाला है ये हमारा आर्क है। ओके, सो दैट इज़ द डिस्टेंस ए बी, और वो हमारा एक्चुअली अर्थ का जो है वो डायमीटर बन जाएगा, तो वो हो जाएगा बी बाय रेडियस। तो यहाँ का जो डिस्टेंस है वो रेडियस है, वो हमारे पास है डी। ओके, ये जो रेडियस वाला डिस्टेंस है वो डी। ओके, अब हमें डी यहाँ पर मेजर करना है, तो डी को अगर हम सब्जेक्ट बना दे तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं बी बाय थीटा। यहाँ पर दो चीज़ें नॉन होनी चाहिए, हमें पता होनी चाहिए। वो क्या कि द डायमीटर ऑफ द अर्थ बी, एंड जो एंगल बनता है वो ये एंगल जो है वो वेरी वेरी स्मॉल होगा। सो बहुत प्रिसीजन और एक्यूरेसी से वो हमें मेजर करना पड़ेगा। तो ये है पैरेलैक्स मेथड।
अगर आप कोई पोजीशन से देखते हैं और जो एंगल बनता है, कोई पोजीशन से दो व्यू देखते हैं और जो एंगल बनता है, तो उससे आप कुछ चीज़ें मेजर कर सकते हैं, उसे पैरेलक्स कहते हैं। यहाँ पर जो पैरेलक्स मेथड हम यूज़ करने वाले हैं उसकी डिस्कशन हमने की। अब ऐसी ही बात हम ऑपोजिट में देख लें कि सिमिलरली हमें कोई, समझो कि ये हमारा कोई प्लेनेट है। अब ऑपोजिट में जाते, समझो कि ये हमारा प्लेनेट है, ये है प्लेनेट, ओके, और ये जो है वो है अर्थ। चलो, तो ये है वो अर्थ। अब हमें कोई प्लेनेट है, उसकी साइज मतलब कि उसका डायमीटर मेजर करना है। नाउ इट इज ऑपोजिट, ओके, समझ लीजिए कि इसका डायमीटर मेजर करना है। यहाँ पर ये बी जो है उसका डायमीटर, कोई प्लेनेट का डायमीटर हमें मेजर करना है। तो हम क्या करेंगे, तो इसके ऑपोजिट जाएंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि अर्थ जो है, यहाँ पर अर्थ जो है ये, तो वहाँ से हम जो प्लेनेट के दो पॉइंट्स है, यहाँ पर पॉइंट ए है और पॉइंट बी है, वो हम अर्थ पर कोई जगह पर रह के, कोई ऑब्जर्वेटरी पर रह के दो पॉइंट जो है वो हम मेजर करेंगे, ओके। और वो जो मेजर करेंगे, यहाँ पर हम टेलीस्कोप इस डायरेक्शन में रखेंगे, ओके। तो ये पॉइंट होगा मेजर ए, देन टेलीस्कोप हमारा है वो इस डायरेक्शन में रखेंगे, तो पॉइंट होगा बी। तो टेलीस्कोप को जब हम यहाँ पर मूव करेंगे तो हमारा एक एंगल बनेगा, समझो कि वो है थीटा, ओके। वो एंगल हमें पता चल जाए, हमें समझो कि डिस्टेंस पता है, तो अभी ये जो बी है मतलब कि हमारा जो डायमीटर है, प्लेनेट की साइज या डायमीटर है वो पता चल जाएगा। तो सिमिलरली थीटा इज इक्वल टू अगेन बी बाई डी, ओके। ये किसी भी तरह भी हम लिख सकते हैं। यहाँ पर हमें क्या मालूम करना है, तो इस बार हमें बी मालूम करना है, मतलब डायमीटर। सो बी इज इक्वल टू थीटा डी, ओके। तो ये किसी भी तरह से हो सकता है, कभी हमें ये जो डिस्टेंस मेजर करना है तो भी मेजर कर सकते हैं, और जो प्लेनेट की साइज़ है वो मेज़र करनी है तो भी कर सकते हैं। तो ये जो बातें थी वो यहाँ पर हमें दी गई। अब ये जो चीज़ थी वो समझने के लिए थी। अब हमें यहाँ पर क्या मतलब याद रखना है और जो प्रैक्टिकल यूज़ में लेना है वो है यहाँ पर एंगल्स और उनका कन्वर्जन। तो उसके लिए हमें यहाँ पर इलिस्ट्रेशन दिया गया है। ये थियरी कोई आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, तो समझने के लिए कि भाई जो लार्ज डिस्टेंस होते हैं वो कैसे मेजर करते हैं हम। तो ये पैरेलक्स मेथड जो है उससे डिस्टेंस मेजर करते हैं और साइज़ भी मेजर करते हैं। साइज़ के लिए मैंने अभी आपको बताया कि अर्थ की फेस पर रह के कोई प्लेनेट है उसके दो पॉइंट्स अगर हम ले लें तो हमारा एंगल बन जाएगा, फॉर एग्जांपल अल्फ़ा। तो अल्फ़ा जस्ट लाइक थीटा, अल्फ़ा इज इक्वल टू डी बाई डी, और हम मेज़र कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो एंगल का कन्वर्जन है उसके लिए इल्यूस्ट्रेशन यहाँ पर और हमारी बुक में भी यहाँ पर कोई इल्यूस्ट्रेशन हमें दिया जाएगा, ओके, वो हम देखेंगे। चलो, तो द कैलकुलेट द एंगल ऑफ डिग्री, मिनट एंड सेकंड इन रेडियन। तो यहाँ पर हमें कुछ दिया गया है कि भाई जो डिग्री है उसका मिनट में कैसे कन्वर्ट करना है, रेडियन में कैसे कन्वर्ट करना है। और यहाँ पर दूसरी बात भी हमें दी गई है। तो ये जो एग्जांपल्स है वो समझने के लिए मैं आपको यहाँ पर एक नोट्स देता हूँ जो आपको नोटबुक में लिखनी है। तो अभी जो फॉर्मूला की मैंने आपको पीडीएफ प्रोवाइड की थी उसके अंदर ये नहीं था, तो अभी मैं अलग से आपको प्रोवाइड करूँगा। चलो, तो हमारा जो एंगल होता है वो हम जनरली डिग्री में मेज़र करते थे अभी तक। देन वी फाउंड रेडियन, ओके, देन हमने यूज़ करना शुरू किया रेडियन। अब ये जो डिग्री रेडियन है उससे भी स्मॉल एंगल अगर हमें मेजर करने हो तो वो है मिनट, वो है मिनट और सेकंड। तो मिनट और सेकंड जो है फ्रेंड्स, मिनट और सेकंड जो है वो टाइम के अलावा यहाँ पर हम एंगल्स में भी यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर जो हमें फर्स्ट एग्जांपल दिया गया है उसमें लिखा है 1 डिग्री। ये तो हमें पता है कि 1 डिग्री क्या होता है। देन ये है 1 मिनट, ओके। तो 1 मिनट अगर हमें इंडिकेट करना हो, कोई भी एंगल हो, समझो कि 10 मिनट हमें इंडिकेट करना हो तो 10 मिनट ऐसे हम लिखेंगे, तो उसे हम प्रोनाउंस करेंगे 10 मिनट, ओके।
अगर सिमिलरली इसे हम ऐसे इंडिकेट कर दे, डबल डैश यहाँ पर ले ले, तो उसे कहेंगे 10 सेकंड। तो एक होगा तो मिनट और दो होगा तो वो सेकंड। ओके, तो इसे मिनट ऑफ आर्क भी कहते हैं और आर्क मिनट भी समटाइम कहते हैं, पर सिंपली हम मिनट भी कह सकते हैं। इसको भी आर्क सेकंड कह सकते हैं, पर सिंपली हम यहाँ पर सेकंड ही कह देंगे। तो ये जो है वो है मिनट ऑफ आर्क और आर्क मिनट, पर यहाँ पर हम सिंपल प्रोनाउंस करेंगे मिनट। सिमिलरली ये दो डैश यहाँ पर लेते हैं तो सेकंड ऑफ आर्क और सिंपली हम प्रोनाउंस करेंगे सेकंड। तो उसको हमें कन्वर्ट करना है, तो कन्वर्ट कैसे करेंगे उसका यहाँ पर हम देखते हैं टेबल। चलो, तो पहले मैं बता दूं कि मिनट और सेकंड क्या होता है। तो उसके लिए समझो कि 1 डिग्री का जो पार्ट होता है वो आप यहाँ पर देख लीजिएगा। 1 डिग्री का जो पार्ट होता है, समझो कि ये जो एंगल यहाँ पर बनता है, ओके, ये जो एंगल यहाँ पर बनता है, ये वाला एंगल, समझो कि ये वाला एंगल जो है वो 1 डिग्री है, 1 डिग्री। ओके, तो 1 डिग्री तो बहुत स्मॉल एंगल हो गया, आपको पता है 360 डिग्री का 3/16 पार्ट मतलब कि 1 डिग्री। ओके, पूरा सर्कल का जो 3/16 पार्ट है वो, अब उसका भी हम स्मॉल पार्ट बनाए, इस तरह से उसके भी हम स्मॉल पार्ट बनाए, तो टोटल समझो आप उसके 16 पार्ट बनाए। टोटल कितने? 16 पार्ट बनाए। तो ये जो 60 पार्ट बनाएंगे आप, तो उसका एक जो पार्ट है उसे कहेंगे हम 1 मिनट। ओके, 1 मिनट कहेंगे उसे। तो अगर इसके हम 16 पार्ट को इस तरह से बनाए, तो ये वाला जो एंगल बन जाएगा, ये वाला एंगल जो बन जाएगा, ओके, वो तो वेरी वेरी स्मॉल होगा। ये वाला एंगल तो वेरी वेरी स्मॉल होगा। वो एंगल जो है उसे कहते हैं 1 मिनट। ओके, अब ये जो एंगल है उसमें हम आगे जाए, और वो जो 1 मिनट वाला एंगल है, समझो कि वो 1 मिनट वाला जो एंगल है, यहाँ पर मैं ले लूँ, ये 1 मिनट वाला एंगल है, उसके हम अगेन 16 पार्ट बनाए। यहाँ पर जो है वो 1 मिनट वाला एंगल है, ये वाला 1 मिनट का एंगल है, तो वो तो काफ़ी स्मॉल हो गया था। उसके भी अगर मैं 16 पार्ट बनाऊँ, ओके, तो एक जो एंगल बनेगा यहाँ पर स्मॉल वाला, एक अगेन एंगल बनेगा जो यहाँ पर एक स्मॉल एंगल बनेगा, उसे कहेंगे 1 सेकंड। ओके, तो ये बात कुछ कैसे हो गई समझने के लिए। तो जो डिग्री है वो हमारे लिए आवर का काम करता है। ओके, ये हमारे लिए आवर का काम करता है। तो ये जो मिनट हो गया वो हमारे लिए मिनट हो गया, उसका 16 पार्ट, आवर का 16 पार्ट मिनट हो गया, और उसका भी 16 पार्ट जो है वो हो गया सेकंड। तो ये जो क्लॉक में होता है ऐसा ही हो गया, तो समझने के लिए भी आसान हो गया। ओके, अब इसका कन्वर्जन कैसे करेंगे। तो जो 1 डिग्री होता है, 1 डिग्री, ओके, इज इक्वल टू हाउ मैनी मिनट्स। तो 1 डिग्री मतलब टोटल कितने पार्ट हुए थे, 1 डिग्री के टोटल पार्ट हुए थे 16, तो 16 मिनट हो गई 1 डिग्री, यानी कि 16 मिनट। ओके, और उसके 1 मिनट के भी कितने पार्ट हुए थे, 60, तो टोटल कितने पार्ट हो गए, तो टोटल पार्ट हो गए सेकंड में अगर जाए तो 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं, तो आप बोलेंगे 1 आवर में 3600 ओके, इतने सेकंड होते हैं। तो ये हो गए हमारे सेकंड। ओके, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, 1 डिग्री इज इक्वल टू 3600 सेकंड्स। पता है ना कैसे हुआ, क्योंकि 16 इंटू 16, ओके, इसलिए ये हुआ। तो अगर इतना आपको याद रह जाए तो बाकी की सब चीज़ें हैं वो आपको आसानी से याद रह जाएगी। कैसे, मैं आपको बताता हूँ यार। समझो कि अगर मुझे मिनट से, चलो पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 16 मिनट। ओके, अगर मुझे मिनट से डिग्री में जाना है, यहाँ पर समझो कि 1 मिनट का कितना डिग्री होगा, 1 मिनट का कितना डिग्री होगा, तो 60 जो है डिवीजन में जाएगा, तो हो जाएगा 1/16।
1/16 हो गया। तो अगर आपको मिनट से डिग्री में जाना है तो वो 1/60 हो जाएगा। चलो सिमिलरली यहाँ पर सेकंड का देख लें। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 3600 सेकंड है। ओके, चलो तो अगर सेकंड से डिग्री में जाना है, मतलब कि 1 सेकंड का डिग्री कन्वर्ट करना है, तो 3600 नंबर है, 1 के डिवीजन में आएगा तो क्या हो जाएगा 1/3600 डिग्री। ओके, तो ये हो गया सेकंड से डिग्री में। चलो सिमिलरली हमें ये देखना है कि भाई मिनट और सेकंड में कन्वर्जन कैसे करें। तो चलो मैं ले लूँ कि भाई 1 मिनट तो उसका सेकंड कितना होगा, तो 60 सेकंड। 1 मिनट यानी कितनी सेकंड, तो 60 सेकंड, आपको पता है। ओके, तो अभी मैं ले लूँ कि भाई 1 सेकंड तो कितने मिनट हो गए, तो 1/60, तो ये हो गए 1/60। ओके, तो ये हो गए मिनट और डिग्री के सेकंड में कन्वर्जन। अब रेडियन डिग्री उसका क्या करेंगे हम। तो अगर हमें कोई भी एंगल दिया जाए तो पहले वो डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा, देन हम उसे मिनट और सेकंड में कर सकते हैं। ओके, अगर रेडियन में दिया गया है तो पहले डिग्री में करना पड़ेगा, देन रेडियन और सेकंड में सॉरी डिग्री मिनट और सेकंड में जा सकते हैं। तो ये जो बातें हैं उसे यहाँ पर हमें पीडीएफ में एक फुट नोट में दी जाएंगी। ओके, ये वाला, और मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करूँगा एक पीडीएफ।